But before I go there, let's do a quick recap of how the Six Sigma project has progressed from nothing to analyze, और फिर उसको कनेक्ट कर लेंगे improve control में. So you pretty much started with the define phase of Six Sigma with identification of. So you identified some problem या some improvement opportunity. You identified stakeholders associated with the problem. You gathered voice from the stakeholders and converted that into CTQ. इसी CTQ पे you documented your project charter. Which subsequently was approved by the sponsor. यही किया when you were doing the define phase. इसमें कोई questions हैं, इसमें कोई discussion threads हैं people? Good. रोहित, उषा, श्रवणी, अरुण, questions define phase में? ठीक है? Okay. इसके बाद we ventured into the measure phase of Six Sigma. You started with the CTQ characteristic identification. You built your data collection plan. You collected data based on the DCP. Then you set out to validate the data. Using measurement system analysis. और अगर सब कुछ ठीक था, then we moved further to calculate our process capability. इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी मेजर में बहुत इम्पोर्टेंट है दैट MSA पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखो, प्रोसेस कैपेबिलिटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखो. सो इसका डिसीजन ट्री, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का डिसीजन ट्री बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्वेश्चन नंबर 1, मेरा डेटा डिस्क्रीट है, मेरा डेटा कंटिन्यूअस है. इफ माय डेटा इज डिस्क्रीट, सिंपल थॉट, हम MSA करने के लिए AAA या एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस करते हैं. कंटिन्यूअस डेटा के लिए इफ वी वांट टू वैलिडेट आवर इक्विपमेंट, वी डू टेस्ट रीटेस्ट. If we want to validate our equipment and operator, we use a method called gauge RNR ANOVA. ये डिसीजन ट्री याद रखना है. इंटरव्यू में MSA में अगर आपने ये एक्सप्लेन कर लिया, काम खत्म हो गया. सिमिलरली जब आप प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपका डेटा न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक? नॉन न्यूमेरिक डेटा है
तो you will do the DPMO method. अगर न्यूमेरिक डेटा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन साइडेड स्पेसिफिकेशन है या टू साइडेड स्पेसिफिकेशन है. वन साइडेड में अपन सिर्फ z वैल्यू निकालेंगे, टू साइडेड में z एंड CP/CP के PP/PP के निकालेंगे. ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा. So measure phase was pretty much about identifying your CTQ का characteristic या CTQ का metric, building your data collection plan. Based on the data collection plan, we collected the data for our project Y, we validated our data, और अगर data was good to go, तो we assessed the as-is process capability. Any questions on measure? People? Cool. Analysis started with identification of potential factors. Based on the identification, इसको आप showcase कर लो using something like fishbone. You build your DCP for potential factors. And then you go ahead, collect data and validate statistically using the method of hypothesis testing. अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी में हो, सो दिस पोर्शन इज अ बिग क्वेश्चन थ्रेड. आप ये समझ लो 60-70% ऑफ योर क्वेश्चंस विल ओनली बिलोंग टू द स्टेप 4 ऑफ एनालाइज. बार बार इसके वीडियोस को देखो, सारे टेस्ट का प्रेपरेशन कर लो, एंड देन if you have some questions, reach out to us. We'll be able to fix your doubts. Project करना बहुत ज़रूरी है, so reach out if you need any help in your projects. Any questions on Analyze? No. Cool. एक सैटरडे मेरा बैच शुरू हुआ है जो करंटली अभी एनालाइज होना है अगले सैटरडे. अगर किसी को रिवीजन वगैरह की जरूरत है, यू गाइस कैन रीच आउट टू नेहा एंड शी कैन सेंड यू द लिंक टू दैट बैच. यू कैन रीडू इफ रिक्वायर्ड. नाउ आई एम जंपिंग टू इम्प्रूव. Analyze ended with a list of all the contributing factors. So analyze से हमको क्या मिला? Analyze ने हमको एक लिस्ट दे दिया of all the factors. So we have a list of all the factors that impact our project work.
the first step as part of your improve will be to screen or prioritize amongst the factors. Sir, sorry to interrupt. Can we please get a recording of this session in our group, which we are doing? Sure, will do. Thank you, sir. So ideally projects में कैसा होता है, you will end up having very large number of factors that impact your project. Let's say I am doing a project on handling time और मुझे जो factors निकल के आए हैं, let's say there are 35 factors which the analyze phase has told us impact our project Y. अब सारे के सारे factors पे काम कर पाना is near impossible. So my advice is that look at these 35 and try and screen them. This screening can be done two ways. Either I can do the screening mathematically, or I can use certain attributes to be able to screen them. If you recall, when we were doing our analyze phase, we had values like R, R square. जब आप chi square टेस्ट पढ़ोगे तो वहां एक वैल्यू आता है chi square. इन नंबर्स को हम यूज करेंगे टू प्रायोरिटाइज. मतलब let's say I have a factor 1. I'm doing a project on handling time and I found out that shift impact करता है. इसका p value 0.05 से कम आया था. R square value for shift came at let's say 62%, while team leader का R square was coming at a 72%. Let's say gender का impact 0.05 से छोटा आया था और इसका R square is coming at a 12%. Call disposition का R square came at let's say 92%. You gotta realize that R square explains percentage impact of X on Y. जितना ज्यादा R square है उतना ज्यादा X का impact है Y पे, which simply means that ये जो हमारा call disposition था, this has the highest impact on our project Y, while gender is not a significant contributor. इसका impact 12% है. So this becomes my priority 1, this becomes my priority 2, this becomes my priority 3. Everyone with me on this simple thought? Yes, sir. And the minimum should be 62 or 60 something? हाँ, 62%. 62, okay. तो R square वैल्यू को यूज करके हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. सिमिलरली R वैल्यू जो कोफिशिएंट आया था इन योर कोरिलेशन टेस्ट, उस कोफिशिएंट वैल्यू को भी देख के हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. हायर द R वैल्यू द बेटर द इम्पैक्ट ऑफ द X on Y. chi square सिमिलर. तो एक तरीका of prioritization will be based on certain mathematical values like R square, R, chi square, coefficients, etc. With me, everyone? The other could be based on certain attributes of cost, time, etc., etc. Let's look at your template.
if you see here I have looked at a couple of factors. एक फैक्टर मेरा आया प्रोसेस नॉलेज, एक फैक्टर आया मेरा एक्सपीरियंस, एक फैक्टर है मेरा होल्ड टाइम, एक फैक्टर आफ्टर कॉल वर्क, एक फैक्टर लेगेसी सिस्टम। और प्रायोरिटाइज करने के लिए मैंने जो एलिमेंट्स उठाए हैं, वन आई एम सेइंग टाइम, जो चीज कम टाइम लग रहा है वो मेरे लिए बेटर है, जिस चीज में कॉस्ट कम लग रहा है वो मेरे लिए बेटर है। सो इन द रेटिंग ऑफ द टाइम आई एम सेइंग रेटिंग 3 इफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज टेकिंग लेस देन 4 वीक्स। तो आप सोच के देखो, अगर आपको आपके टीम के कुछ बच्चे हैं, उनका प्रोसेस नॉलेज ठीक करना है, कितना टाइम लगेगा? ईशा, तेरे टीम में 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोसेस नॉलेज खराब चल रहा है, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू इंप्रूव देयर प्रोसेस नॉलेज? डिपेंडिंग किस लेवल पे खराब है, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो इट टेक मिनिमम 3 to 4 days। मैं कह रहा हूं तुझे 4 वीक से कम लगेगा ना? Yes। तो आई एम कॉलिंग इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 3। मैंने बोला 3 है उसकी रेटिंग, बिकॉज प्रोसेस नॉलेज इंप्रूव करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे उसमें मुझे खर्चा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये मेरे इंटरनल रिसोर्सेज ही उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है। दीज आर प्रोसेस नॉलेज इज समथिंग दैट आई कैन कंट्रोल। इजी है कि डिफिकल्ट है? मैं कह रहा हूं इजी है प्रोसेस नॉलेज चेंज करना। कि उन बच्चों को डराना आसान है कि अगर तू अपना प्रोसेस नॉलेज पे फोकस नहीं करेगा तो आई विल पुट यू ऑन PIP एंड सब्सिक्वेंटली you will be let go from the organization। कहीं रिसोर्स अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन है, कहीं इम्पैक्ट ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस या CSAT का क्वेश्चन है, कहीं एप्लीकेबिलिटी टू अदर एरियाज का क्वेश्चन है। So these are some of the attributes I am using to prioritize कौन सा फैक्टर अपन यूज करेंगे, कौन सा फैक्टर अपन फोरगो कर सकते हैं। आई एम यूजिंग एट्रीब्यूट्स लाइक टाइम, कॉस्ट, controllability, ease of change, impact on customer experience, applicability to other areas. At several organizations, this becomes more important। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कर लिया that anything that impacts customer experience वो 50% वेटेज उसी का दे दे रहे हैं, बाकी सबका मिला के 50%, इम्पैक्ट ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस का 50%। आई एम करंटली हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे मेरा फोकस एप्लीकेबिलिटी टू अदर एरियाज है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 8 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। हमने उनका एनर्जी कंजम्पशन का एक प्रोजेक्ट किया एक फैक्ट्री में। अब जब हमको आंसर्स पता चल गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे घटाया जाए, तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देना बाकी लोकेशंस पे। नया प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या है? आर यू विथ मी एवरीवन? बार बार प्रोजेक्ट करने से अच्छा है जो एक प्रोजेक्ट में अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया उसको बाकी जगह पे इंप्लीमेंट कर लो। दैट इज द इजियर ऑप्शन। हमेशा ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए जो कंट्रोल में हो। पहला फोकस वही बनाना चाहिए जहां काम करना आसान हो, जहां खर्चा कम लगे, जहां टाइम कम लगे। I am essentially looking at a template like this, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो I have a number here that I am calling as a factor prioritization number। Everyone
सिंपल थॉट, मल्टीप्लाई कैसे? हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये प्रोसेस अच्छा, नॉलेज ठीक वाला है। एग्जांपल देख, 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारा मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गेट अ स्कोर ऑफ 972। सो ठीक है। अगर प्रोसेस नॉलेज और एक्सपीरियंस को कंपेयर करना हो तो मुझे दिख रहा है फैक्टर प्राइडेशन स्कोर ऑफ प्रोसेस नॉलेज 972। इसमें मुझे लगता है कि ये भी 3 होना चाहिए, दिस विल बिकम 27। तो अगेंस्ट 972 दूसरे वाले फैक्टर का क्या, एक्सपीरियंस का क्या आया 27। तो ऑब्वियसली प्रोसेस नॉलेज पे काम करना विल बी बेटर और एक्सपीरियंस को ड्रॉप कर देना या प्रायोरिटी लो कर देना इज एडवाइजेबल। With me everyone? Yes. Is to screen or prioritize. Then we will set out to build action plan on improving our factors. Let's say for example, I am doing a project on handling time and I found out that process knowledge impact करता है, after call work impact करता है। ईशा और क्या फैक्टर्स आए हैं तेरे प्रोजेक्ट में, या बेसिस योर एक्सपीरियंस और क्या फैक्टर लगता है? शिफ्ट है सर, जेंडर है, लोकेशन है, ट्रेनर्स हैं। बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, मे बी ट्रेनर में ऐड कर लेता हूँ। एक वर्क टाइप का पक्का इम्पैक्ट होगा। So let's say I have these 4 factors. I found out that process knowledge is an impacting factor. एक approach जो advisable है is to use the 5 why approach. We are saying process knowledge impacts handling time. But my question to you is, process knowledge किसी का क्यों खराब होगा? What are the contributing factors? तुमको क्या लगता है process knowledge क्यों खराब होगा किसी का? रोहित? बिकॉज वो टाइमली अपडेट्स वगैरह जो डिलीवरेबल आती हैं अपडेट्स, वो उनको मतलब वो थ्रू नहीं कर रहा होगा एम्प्लॉय। पहला कर देता हूँ कि टाइमली अपडेट शेयर ही नहीं हो रहा है, दूसरा है कि ही इज नॉट गोइंग थ्रू ऑल दैट। Maybe they are not attending briefings and all. So timely updates नहीं मिले, या एक फैक्टर अपन कह रहे हैं missed the updates। और क्या रीजन हो सकता है? Duplicated data that is not too frequent in the process. Okay. PKT test not frequent. So quality. अगर माइक में कोई इशू आ रहा है श्रावणी तो टाइप कर दे, चैट पे डाल दे। अरुण, किसी का प्रोसेस नॉलेज क्यों खराब होगा?
सर there can be two factors कि प्रोसेस नॉलेज खराब होगा. एक हो सकता है उसका प्रोसेस नॉलेज खराब हो बिकॉज जब उसको ट्रेनिंग दी गई थी वो ट्रेनिंग ही ठीक से नहीं लिया था, या तो फिर वो जो डेली नॉलेज अपडेट आता है उसको वो गो थ्रू नहीं करता है, और मे बी जब बेसिक सेशंस होते हैं उसमें वो अटेंड नहीं करता. तो जो भी फैक्टर्स हमारे प्रोसेस में अप्लाई होते हैं जस्ट टू कीप द पीपल अपडेटेड ऑन द प्रोसेस नॉलेज, एंड इफ एनी सिंगल एडवाइजर इज मिसिंग आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स कैन बी अ फैक्टर. Fair. Now I'm asking you one level below. Why do you think timely updates were not made available? ऐसा क्यों हुआ कि प्रोसेस में टाइमली अपडेट करना अपन भूल गए, मिस क्यों कर गए? प्रोसेस नॉलेज का टेस्ट फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग? अपडेट्स उस बच्चे ने क्यों मिस कर दिया? मे बी ही वॉज एब्सेंट. Maybe he was absent और मतलब इंस्ट्रक्शन की वो अडेयर नहीं हुई है कि हाँ हमको वीकली मान लीजिए लोड कराना है ऑन हिज टेस्ट एंड दोनों ही लिख करा रहे हैं. Correct. In a single word, I can say that Pranay sir means all these factors. If I calculate, somewhere it is kind of a tracking not done from the upper level side of that person. ठीक है. इन सारी चीजों की ट्रैकिंग नहीं होना. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, जब अपन इसको सॉल्व करने पे आ रहे हैं तो प्रोसेस नॉलेज का प्रॉब्लम का जब अपन रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं, सो वी फाउंड सेवरल इश्यूज. द इशू कुड हैव बीन ट्रेनिंग नॉट डन वेल. या पार्टिसिपेंट केयरफुल नहीं था. पार्टिसिपेंट wasn't attentive. अपडेट्स मिस हो गए. या अपडेट्स टाइमली शेयर नहीं हुए. If we start to think in terms of root causes and start working at fixing the root causes, तो हमारा solutioning, हमारा solution design will always be better. तो एक तरीका will be about doing much deeper analysis. ये तो अपन first level पे हैं. Now think about training अच्छे से क्यों नहीं हुई? Training अच्छे से इसलिए नहीं हुई because trainer unskilled था. या ट्रेनर अनइंटरेस्टेड था. पार्टिसिपेंट क्यों अटेंटिव नहीं है? पार्टिसिपेंट अटेंटिव इसलिए नहीं है बिकॉज डज नॉट लाइक दिस जॉब. बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं खास करके बीपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनको ऐसा लगता है कि दे आर मेड फॉर समथिंग बिगर. आज के बच्चों की का एक नया भसड़ है. औकात अठन्नी की हो लेकिन समझते अपने आप को रॉकेट साइंटिस्ट हैं. तो सबको ऐसा लगता है, हाँ, सबको ऐसा लगता है कि आई वॉज मेड फॉर समथिंग बिगर. सबको ऐसा लगता है कि हर आदमी गुलजार बन जाएगा, हर आदमी बादशाह बन जाएगा. तो दे डोंट लाइक द जॉब दैट दे हैव गॉटन. And because they don't like the job, तो वो जो ट्रेनिंग मिल रही है उसमें कभी वो अटेंटिव है ही नहीं. शायद लैक ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसेस की वजह से भी प्रॉब्लम है. मुझे मेरा टाइम याद है, हमारे ट्रेनिंग में रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस होते थे. तो बहुत सारे बच्चे, बिकॉज उसमें इंसेंटिव होता था 4-4 हज़ार रुपए का, सो बिकॉज ऑफ इफ यू अटेंड ऑल द सेशंस तो तुमको एक 4,000 का एडिशनल बोनस मिलता था. अगर तुमने सेशन मिस किया तो तुमको 500 रुपया का डिडक्शन था.
सो वो जो प्रोसेसेस थे उसकी वजह से भी लोग अटेंटिव होने लगे। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. आपके ट्रेनिंग स्कोर पे आपको फ्लोर बेनिफिट्स थे। अगर आप फ्लोर पे जब जाओगे तो आपकी सैलरी 4 या 5% बढ़ जाती थी और वो सैलरी डिपेंड होती थी ऑन योर ट्रेनिंग स्कोर्स। सो अनलेस यू पुट इन प्रोसेसेस, अनलेस यू पुट इन द राइट आंसर्स एट द राइट प्लेस, और उसका इकलौता उपाय है व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग डीपर, आप बार बार वाई पूछते जाओ। Why is process knowledge poor? Process knowledge is poor because of bad training. ट्रेनिंग खराब क्यों थी? ट्रेनर इंटरेस्टेड नहीं था। ट्रेनर क्यों नहीं इंटरेस्टेड था? Does not find this job worthwhile. और क्या रीजन प्रोसेस नॉलेज के खराब होने का? वी सेड अपडेट्स वर मिस्ड। क्यों मिस हो गया अपडेट? बिकॉज नो वन इज अकाउंटेबल। कोई अकाउंटेबल क्यों नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियरली नहीं बने। क्यों नहीं बने जॉब डिस्क्रिप्शंस? नया रोल है या नया प्रोसेस है। सो वन गुड वे ऑफ गेटिंग टू राइट आंसर्स इज अबाउट डिगिंग डीपर। जितना बॉटम पे जाओगे उतना अच्छा आंसर निकल के आएगा। सो जब आप एक्शन प्लान बनाने में लग रहे हो, एक्शन प्लान बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो 5 why मेथड ही है। और हमेशा सॉल्यूशन डिजाइन में कुछ बेसिक सेलिएंट एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। हमेशा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लैरिफाई करो, किसको क्या करना है। जब आप बना रहे हो तो टाइमलाइन बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट करो। जब आप एक्शन प्लान बना रहे हो तो थिंक अबाउट व्हाट मे गो रॉन्ग एंड ट्राई एंड बिल्ड कंट्रोल्स। लाइफ कभी वैसे नहीं चलेगी जैसा आप चाहते हो। If you want to avoid surprises, the only way is to preempt them and build controls around them. Everyone, are you with me? मुझे ऐसा लग रहा है that my trainer may not be interested. तो क्या करूं? ट्रेनर का इंटरेस्ट जगाने के लिए उनका P for P अटैच कर दो ट्रेनी के परफॉर्मेंस पे। अगर ट्रेनर का पैसा डिपेंड करेगा, ट्रेनर को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, अगर उसके ट्रेनीज का स्कोर अच्छा हो तो ट्रेनर बहुत अटेंटिवली पढ़ाएगा। आर यू गाइस विथ मी? बच्चों के परफॉर्मेंस को ट्रेनर से जोड़ दो, ट्रेनर ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएगा। कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस बिल्ड कर दो तो ट्रेनीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एसोसिएट कर दो। सो यू गॉट टू थिंक अबाउट व्हाट मे गो रॉन्ग। लाइफ में कभी भी जैसा आप लाइफ प्लान करोगे वैसा आंसर आए ये जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट? द ऑल्टरनेट इज टू आइडेंटिफाई कहां गड़बड़ हो सकती है एंड सेट आउट टू आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। वी विल स्टडी अ टूल कॉल्ड FMEA। या तो आप इस टूल के थ्रू ये काम करोगे या आप इसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो। एवरीवन, ये थॉट क्लियर हो गया व्हाट इफ वाला?
Yes, sir. रोहित, अरुण, श्रावणी, उषा, Yes, sir. मेरा पर्सनल एडवाइस, कोई भी काम करिए मिस्टेक प्रूफिंग के बारे में सोचिए। सिस्टम्स ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि जिसमें गलती होने का लाइक्लीहुड ही खत्म हो जाए। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल डूइंग द राइट थिंग्स, गॉड ब्लेस द सिस्टम। आप सोच के देखो, टाटास ऑपरेट सच अ ह्यूज होटल चेन। उनको मालूम है दैट रोहित विल कम टू विजिट वन ऑफ दीज प्लेसेस, टैप यूज करेगा, बंद करना भूल सकता है। उन्होंने क्या किया, आज आपके पास पानी के डिस्पेंसिंग मशीन्स आ गए जो आपके हाथ की आहट पर चालू हो रहे हैं, आपके हाथ की आहट खत्म हुई तो वो बंद हो जा रहे हैं। दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन सम रोहित, सम ईशा, सम प्रणय रिमेंबरिंग टू क्लोज इट। विथ मी? Yes, sir. आपको अपने आसपास के सिस्टम्स का डिजाइन ऐसा करना पड़ेगा जिससे लाइक्लीहुड ऑफ मिस्टेक ही खत्म हो जाए। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम किसी भी सिस्टम को तोड़ने में पीएचडी कर रखे हैं। डू यू नो वॉशिंग मशीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे लस्सी बनाने के काम आता है। वी आर वेरी क्रिएटिव एज इंडियंस। आपको सोचना पड़ेगा कि बिजनेस प्रोसेसेस, सिस्टम्स हम ऐसे डिजाइन करें कि उसमें गलती होने का चांस ही खत्म हो जाए। ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसेसेस, पीपल, एवरीवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेनर अलग तरह की बात कहेगा तो आपने ई लर्निंग सोल्यूशन बना दिया। ई लर्निंग सोल्यूशन से क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब इंसान पे डिपेंडेंट ही नहीं है डिलीवरी। एक बार अगर ई लर्निंग सोल्यूशन बन गया और हमने उसको साइन ऑफ दे दिया, आउटकम क्या हुआ? ईशा पढ़े या रोहित, एक ही कंटेंट पढ़ रहा है। Standardization will ensure that people get the same message every time. Look at organizations around you. गलती हमेशा कॉस्टली होगा। बेस्ट, अगर आप मिस्टेक प्रूफिंग नहीं कर सकते हो तो कम से कम मिस्टेक सिग्नलिंग जरूर एस्टैब्लिश कर दो। आप आग होने से तो नहीं रोक सकते हो, तो आपने फायर अलार्म्स लगा दिया कि जैसे ही उसको स्मोक की आहट होती है, इट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। इट इज एटलीस्ट सिग्नलिंग व्हेन दे सी सम एरर। या बेटर स्टिल, इफ यू कैन सेट अप सम अर्ली वार्निंग सिग्नल। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Sir, just in case, this is also suppose if we are making any mistake putting element or something. So this is why I give an example कि tap बंद करने के लिए we need an automatic system for that. And every time we are making something that is मतलब यहाँ पे लग रहा है हमारा एक cost. And what if any company is not interested to invest in something that they want improvement? For suppose अगर ट्रेनर का इंटरेस्ट बढ़ाना, they are not ready to put the bonus, but somehow बढ़ाना है, so what ऐसा होता है तो? देखो, एक चीज तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब हम कॉस्ट बेनिफिट दिखाएंगे तभी कोई मेरा इंप्रूवमेंट का कॉस्ट बेयर करने को तैयार होगा। एवरीथिंग इन लाइफ इज गोइंग टू हैव सम कॉस्ट इम्पैक्ट। सो अगर अपन उसको केयरफुली सेल कर सके, we should have a good discussion around this. This is a very important question. At the end of the day, whatever improvement idea you will give me, most of the ideas will have a cost impact. आप कॉस्ट को जस्टिफाई कैसे करोगे, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और नहीं जस्टिफाई करोगे तो आपका आइडिया कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैंने भी कल ही एक वीडियो बनाया है चेंज मैनेजमेंट पे, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू सी दैट वीडियो। उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं हाउ टू फाइनेंशियली कन्विंस पीपल, एंड आई विल शेयर समथिंग विथ यू गाइस। फेयर? Okay, sir. Thank you. 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वी मीट ऑन द अदर साइड 10 मिनट्स लेटर। या Sure, sir. कूल, 10 मिनट का ब्रेक। Okay, sir. So prior to getting into the break, we said after you've screened or prioritized your factors, the second step we are saying is to build your action plan. और एक्शन प्लान बिल्ड करने में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। A, I'm saying ensure that roles and responsibilities are allocated to people. Ensure that timeline defined ho. Ensure that you've thought about how things may go wrong and you build controls around them. Best option in life will always be to look at how you can mistake proof your situations, your system design, your solution design in life. नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट मिस्टेक सिग्नलिंग बिल्ड कर दो। और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स सेटअप कर दो अपने सिस्टम में। कुछ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस एसोसिएट कर दो। रिपोर्टिंग रिदम सेट कर दो। Once your action plan is built, एक्शन प्लान बिल्ड करने से तो नहीं होगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। सो इम्प्लीमेंट योर एक्शन प्लान एंड होपफुली एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंट होने से इम्प्रूवमेंट्स होगा। सो नाउ दैट आई हैव रीट्रेन्ड लॉट ऑफ पीपल ऑन प्रोसेस नॉलेज, होपफुली मेरा प्रोसेस नॉलेज कोर्स इम्प्रूव होगा। एंड बिकॉज वी हैव स्टैटिस्टिकल एविडेंस that process knowledge improve होने से handling time improve होगा। When I thought about my handling time का project, I saw that certain hold time was impacting। hold time को reduce करने के लिए हमने action plan implement किया है। So because मेरा hold time कम हो रहा है तो overall handling time improve होगा। So now I will have some improvement in my X and my Y। So start collecting data and statistically validate them. In the define phase, we've created a goal statement. जब अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो डिफाइन फेज में हमने हैंडलिंग टाइम का एक गोल बनाया था। चेक करो स्टैटिस्टिकली इफ वी हैव अचीव दैट गोल। वो जो 1 वाला टेस्ट था, अगर मीन रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो 1 सैंपल टी टेस्ट करके आप स्टैटिस्टिकली वैलिडेट कर सकते हो। अगर मीडियन वाला टेस्ट प्रोजेक्ट है 1 सैंपल साइन करके वैलिडेट कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस का प्रोजेक्ट है 1 वेरिएंस टेस्ट है उससे आप वैलिडेट कर सकते हो। परसेंटेज या प्रोपोर्शन का प्रोजेक्ट है तो 1 पी टेस्ट से कर सकते हो।
अगर काउंट डेटा पे प्रोजेक्ट है तो 1 पैसा रेट से कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज कि आपको स्टैटिस्टिकली वैलिडेट करना है गोल अचीव हुआ कि नहीं। वंस द गोल इज अचीव्ड, इंप्रूव फेज खत्म हो गया, कंट्रोल फेज शुरू हो गया। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Once your improve ends, control starts. Control is a copy paste of the improve phase. Control is about sustaining the improvements that you've made. इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आवर एक्शन प्लान। तो जो एक बार किया था एक्शन, उसको प्रोसेस में कन्वर्ट कर देना है। सो वी विल सेट आउट टू बिल्ड कंट्रोल प्लान मतलब वही एक्शन प्लान को कंटिन्यू करना है। बस अब तक वो वन टाइम था, नाउ वी हैव टू टर्न दैट इनटू अ प्रोसेस। तो अपने एसओपीज अपडेट कर लो, लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शंस अपडेट कर दो, ऑडिट्स मैंडेटरी स्टार्ट कर दो। और वो जो व्हाट इफ किया था, वहां पर ऑप्शनल था, यहां मैंडेटोरली करना पड़ेगा। एवरीवन विथ मी? सिंपल थॉट? Yes, sir. Sir, audits में हम लोग spot audit भी कर सकते हैं ना इसमें? हाँ, अब थॉट क्या है कि उस एक्शन से हमारा इंप्रूवमेंट होना है। सो वी डिसाइडेड कि हर बच्चे का प्रोसेस नॉलेज का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराएंगे। चेक करके देख लो रिफ्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करके देख लो रिफ्रेशर ट्रेनिंग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो प्रोसेस नॉलेज का जो टेस्ट हुआ वो ऐसा नहीं तो फर्जी तो नहीं था। मेरे टाइम पे क्या होता था, मेरा ट्रेनर आता था और वो कहता था प्रणय 2 मिनट सिस्टम छोड़, मेरे सिस्टम पे खुद से ही टेस्ट दे देता था। अगर ऐसा जुगाड़ हो रहा है तो प्रोसेस नॉलेज टेस्ट स्कोर्स तो अच्छे आएंगे। प्रोसेस नॉलेज अच्छा है कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ऑडिट्स करके ऐसी चीजों को वेरीफाई करना चाहिए। कंट्रोल प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट करो। और वहां पर हम लोगों ने एक बार स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन किया था, यहां हमको लगातार करते रहना पड़ेगा। कोई रूल तो नहीं है, बट एक अनसेट रूल हमारी कंपनी में, जहां मैं जॉब करता था, हमारी कंपनी का रूल DMAI = C था। मतलब जितना टाइम आपको डिफाइन से इंप्रूव में लगा, कंट्रोल फेज उतना ही टाइम का होगा।
अज्यूम करिए डिफाइन से इंप्रूव करने में मुझे 3 महीने लगे, तो कंट्रोल फेज भी 3 महीने का होगा। थॉट क्लियर है एवरीवन? Right, sir. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोजेक्ट्स पे रूल होगा DMAI इज इक्वल टू 2C। जितना टाइम लगा डिफाइन से इंप्रूव आने में, कंट्रोल फेज उसका 2 गुना टाइम का होगा अगर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है तो। मैं एक बार कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर आवर पे प्रोजेक्ट कर रहा था। 3 महीने बाद हमारा टारगेट था कि $10 पर आवर से कॉस्ट नीचे कर दें। आवर कॉस्ट केम डाउन टू 9.3 9.4। 3 महीने बाद मैंने अपने बॉस से साइन ऑफ के लिए लिखा कि प्लीज 3 महीने हो गए, इम्प्रूव हो गया है, 3 महीने से कंट्रोल में है, प्रोजेक्ट क्लोज करने का परमिशन दे। उसने कहा नहीं यार 3 महीने और देख ले। 3 महीने बाद फिर मैंने लिखा, इस बार और घट गया था, लगभग 9.1 के आसपास आ गया था। मैंने अपने बॉस को दोबारा लिखा, हेलो मिस्टर CEO अप्रूव करो, प्रोजेक्ट क्लोज करो। बोला नहीं यार 3 महीने और देख ले। तो प्रोजेक्ट में जितना पैसा है उस पर डिपेंड करेगा कंट्रोल फेज। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे चलेंगे कंट्रोल फेज, लेकिन कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका थॉट क्या है? हम ये चाहते हैं कि वॉट एवर वी हैव इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूड रहे। करेक्ट ना? ध्यान रखना, Right, sir. इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ? उस एक्शन प्लान की वजह से। तो ये एक्शन प्लान पे फोकस नहीं हटना चाहिए। आपका थॉट था कि प्रोसेस नॉलेज ठीक रखूंगा तो ठीक रहेगा, मेरा होल्ड टाइम ठीक रहेगा तो अच्छा होगा, मेरा इशू रिजोल्यूशन टाइम अगर रिड्यूस रहेगा तो अच्छा होगा। तो भैया इस पे फोकस कंटिन्यूड रखना, इसी के पीछे पड़े रहो। ये ठीक रहेगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट का गोल स्टेटमेंट हमेशा ठीक रहेगा। So we're saying एक काम किया, we built our control plan, इसको implement किया, keep collecting data, और उसको चेक करते रहो। दो तीन चीजें दोबारा करनी पड़ेंगी। एक प्रोसेस कैपेबिलिटी, यू वांट टू शोकेस कि पहले का कैपेबिलिटी और अब की कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। MSA दोबारा करना पड़ेगा और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबमिट करना होगा। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा। आइडली आपके प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस कंट्रोलर होगा वही साइन ऑफ देगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट ने कितने पैसे बचाए, नहीं तो आपको खुद करके सबमिट करना होगा। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. एक ऑप्शनल स्टेप है, बहुत सारे लोग बिफोर आफ्टर एनालिसिस भी दिखाते हैं। So this is what you will do as part of your control phase. Questions हैं तो पूछ लो, and then we proceed. Type analysis भी बोलते हैं, दो नाम हैं। हाँ, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन था कि 5 है तो मतलब 5 ही होना चाहिए। एक या तो 5Y बोलते हैं बहुत लोग इसको, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में इसको YY एनालिसिस भी बोलते हैं। आइडिया ये है कि अपने को जड़ तक पहुंचना है।
हमारा एक बेसिक थॉट है कि जब तक तुम रूट कॉज पे नहीं पहुंचोगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन कभी नहीं होगा। तो हम वी स्टार्टेड विद अ थॉट दैट प्रोसेस नॉलेज पुअर होने की वजह से मेरा क्वालिटी खराब था। आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन क्वालिटी स्कोर। सो मेरा क्वालिटी क्यों खराब था? बोले प्रोसेस नॉलेज की वजह से। प्रोसेस नॉलेज क्यों खराब है? बोले यार बच्चे का ना एप्टीट्यूड ही खराब है, यू हायर्ड रॉन्ग पीपल, या ट्रेनिंग हमने अच्छी नहीं दी। या trainees were not attentive. Etc. अब ये तो लेवल 1 है। अब एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम क्यों है? नॉन साइंस बैकग्राउंड का है या एजुकेशन ही कम है, अंडरग्रेड है, शायद इसलिए एप्टीट्यूड खराब है। ट्रेनिंग अच्छी क्यों नहीं मिली? ट्रेनिंग कंटेंट अच्छा नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हम ट्रेनिंग को। लगता है सबसे फालतू काम है। मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर प्रोसेस नॉलेज कुड बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप किसी किस्म की कंपनी चला रहे हो, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान प्रोसेस नॉलेज पे ही देना चाहिए। प्रोसेस नॉलेज ठीक होगा तो क्वालिटी भी ठीक रहेगी, डिलीवरी भी ठीक रहेगी, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। प्रोसेस नॉलेज तो बट हर ऑर्गेनाइजेशन की यही हालत है दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गिविंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इट्स ड्यू। हमारे अनुसार ये फालतू डिपार्टमेंट है, और जब आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो फिर अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा। अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा तो अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो पक्का तुम्हारा ट्रेनिंग करा प्रोसेस नॉलेज खराब होगा। प्रोसेस नॉलेज खराब होगा तो पक्का क्वालिटी स्कोर, डिलीवरी, सीसैट सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो 5 यू आर एसेंशियली सेइंग आई विल डिग एज डीप एज पॉसिबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू। कोई 5 का लिमिटेशन नहीं है। तुमको 5 स्टेप जाना पड़े, 5 जाओ, 3 स्टेप में खत्म हो जा रहा है तो 3 स्टेप पे खत्म कर दो। आइडिया इसकी जड़ तक जाना है कि अपना सोल्यूशन डिजाइन हम सलीके से कर सकें। एवरीवन विथ मी ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.